Hello, viewers. Welcome to my channel. Today, we are starting a new series in which we study science from class 11 to 12th. So, without wasting time, let's start our first chapter of class 11th, which is the living world. इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स साथ के साथ प्रोवाइड कराऊंगी. So the first topic in this chapter is what is living. As we all know, anything who can show the properties like growth, reproduction, ability to sense the environment, metabolism, etc. are living things. We all know this because this is a very common thing. Now, some of these properties are characteristic properties and some are defining properties. Characteristic properties are those properties which can be shown by both living and non-living things. And defining properties are those which are only shown by living beings. As like growth, it is a characteristic property of living beings. As we all know that all living beings grow, but non-living things also grow, like snow mountains, which grows due to the accumulation of snow on them. So this is an exception, and that's why growth is a characteristic property of human beings. Living beings. Next is reproduction, which is also a characteristic property. So the first thing in this topic is that what is reproduction? So reproduction is a biological process in which an organism gives birth to young ones of its own kind. That means a dog gives birth to a puppy and an elephant always gives birth to a baby elephant. Reproduction is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction is the type of reproduction in which a single parent is capable to give rise to a new young ones. But in sexual reproduction, there is a need of two parents of different gender. And as we know that all living beings can reproduce, but there are some exceptions like worker honeybees and mule, which is a hybrid variety, and some infertile human being couples. That's why reproduction is again a characteristic property. Now, the next one is metabolism. Metabolism is a defining property of living beings, which can be defined as the sum total of all the reactions occurring in our body. Metabolism is a defining property without any exception, and the chemical reactions which takes place in the laboratories in test tubes are non-living things but living reactions. The next property is consciousness, which is a defining property because every organism in this world have self-awareness towards its stimuli. Stimuli means environment. Every organism have self-consciousness towards the physical, chemical and biological effects of stimuli. Like plants are aware towards the physical factor like light. Humans are also very aware towards their environment. In addition, humans have self consciousness, they are self aware. But there is an exception for coma patients, and now we are moving towards the next topic, which is diversity. Diversity in the living world. ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक. तो जो हमारी नंबर ऑफ स्पीसीज इन वर्ल्ड है, टोटल स्पीशीज है जो वो है हमारी 1.7 to 1.8 मिलियन. नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. नॉमेनक्लेचर. ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशंस हमें आनी चाहिए. नॉमेनक्लेचर. Naming of organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. यानी कि एक नेम मतलब जैसे हम लोग हैं तो हमारे पास सबका एक पर्टिकुलर नेम होता है कि हाँ, जिससे हमें उसकी पहचान रहती है कि हाँ भाई हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. इसी तरह हर जो लिविंग बीइंग है उसको एक पर्टिकुलर नेम देना, ताकि जैसे ही हम उसका नेम उसके बारे में बात करें तो हम पता चल जाए कि हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन.
ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो दैट वर्ड ऑर्गेनिज्म इज अटैच्ड टू, यानी कि हम जिस भी ऑर्गेनिज्म का नेम, हम जिस भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं हमें समझ में आ जाए। लाइक मैंने बोला एलिफेंट, तो अब हमने सभी ने एलिफेंट को देखा हुआ है, तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हाँ कि हम एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ये जो तो हमारी फुल फॉर्म्स हैं ये हमें पता होनी चाहिए, ICBN एंड ICZN। ये क्या है? ये जैसे ICBN है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो हमारे बॉटेनिकल यानी कि जो प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करने वाला जो एक तरह से सेंटर है वो है हमारा ICBN, और जो हमारे एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करता है वो है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर कौन है? कार्लस लिनेनिस। कार्लस लिनेनिस ने हमें बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। बाय मतलब कि टू और नॉमियल मतलब कि नेम्स, यानी कि जिस नेम में मतलब इसमें दो नेम्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें से जो जो फर्स्ट वर्ड है वो है जेनेरिक नेम और जो सेकंड वर्ड होता है वो है स्पेसिफिक एपिथेट। जो ये नॉमेनक्लेचर हम करते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसके कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं और वो रूल्स हैं बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, यानी कि ये जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं ये जनरली लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और इन्हें लिखा जाता है इटैलिक्स में। जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जो सेकंड जो वर्ड होता है वो हमारा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। जब भी कभी इनको हैंड रिटन यानी कि हाथ से लिखा जाता है तो जो दोनों के दोनों जो वर्ड्स होते हैं वो सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं, वरना हमारा जो नेम है वो गलत माना जाता है। व्हेन प्रिंटेड, जब इन्हें प्रिंट किया जाता है पेपर पे तो इन्हें इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है इनके लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए। अगर किसी किसी नेम के साथ किसी स्पीशीज़ मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम के साथ हमें उसके ऑथर का नेम भी लगाना है तो हमें लास्ट में लिखना होता है एब्रिविएटेड फॉर्म में, मतलब हम उसे पूरा नहीं लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए है मैग्नीफेरा इंडिका लिनन, यानी कि जिसने मैग्नीफेरा नॉमेनक्लेचर सबसे पहली बार किया था तो वो थे हमारे कार्लस लिनेनियस, तो इसके साथ हमने लगा दिया मैग्नीफेरा इंडिका लिनन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि चीज़ों को क्लासिफाई कर देना। अब क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि हमारे जो स्टडी जो हम उसे कर सकें वो इजी हो जाए। द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी कि वो प्रक्रिया वो टेक्निक जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं एक मतलब सिमिलैरिटीज़ के तौर पे। नेक्स्ट आता है टैक्सा, द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर अ कैटेगरी, यानी कि किसी भी कैटेगरी के लिए चाहे वो किसी भी लेवल पर है उस कैटेगरी के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है टैक्सा। नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमी, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा। टैक्सोनॉमी क्या है? जो जैसे हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि हमने इनको इस ग्रुप में रख दिया, इनको इस ग्रुप में रख दिया, इनको इस ग्रुप में रख दिया, तो ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन करने का अलग अलग टैक्सा में किसको बोलते हैं? ग्रुप को ही तो बोलते हैं, किसी कैटेगरी को ही तो बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के कुछ बेसिस हैं, मतलब इन आधार पे हम टैक्सोनॉमी कर सकते हैं, इन आधार पे हम कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो बेसिस हैं वो हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि जैसे हम मतलब काफ़ी पिछली वाली इंफॉर्मेशंस, जैसे हमारे आदिवासियों के टाइम तक के जो मतलब काफ़ी जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं ना, जैसे बंदर से इंसान बन गए, तो वो जो इकोलॉजी है वो इंफॉर्मेशन भी इसमें मैटर करती है। नेक्स्ट सिस्टमैटिक्स, द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी विद द रिलेशनशिप अमंग देम। सिस्टमैटिक्स क्या है? वो स्टडी की मतलब कि वो ब्रांच जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म को और उसकी डाइवर्सिटी को, मतलब जैसे
दो ग्रुप्स हैं तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो भिन्नता है, डिफरेंस है, उसके बीच के रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स में। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टम है। जो सिस्टमैटिक्स है ये लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया है। लेनिनियस यूज सिस्टमा नेचुरा एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लेनिनियस ने एक बुक की पब्लिकेशन के लिए सिस्टमा नेचुरा एक टाइटल अपना इस्तेमाल किया था। सिस्टमैटिक इंक्लूड्स, सिस्टमैटिक जो हमारी ब्रांच है उसमें आता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी। अब हमारे जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं, जैसे टैक्सोनॉमी जो हमने पढ़ा था कि भाई डिफरेंट टैक्सा में जो प्रोसेस है डिवाइड करने का उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो 7 यहाँ पढ़ने वाले हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? द पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। जो पूरी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है उसके हर एक पार्ट को हम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, द ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी कि जो ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं, ये जब को हम टोटली मिला के बोलते हैं तो होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सॉन, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ रैंक कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन। यानी कि जो ये हर एक जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये इसकी एक अपनी रैंक है, उसे हम टैक्सॉन कहते हैं। ये रहे हमारे टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है किंगडम, फाइलम, डिवीज़न। फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और डिवीज़न हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इसे याद करने की एक ट्रिक भी है जो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। इस तरीके से आप इसे याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम टैक्सोनॉमिक एड्स पे। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है? मतलब जैसे कि हम किसी भी चीज़ को स्टोर करके रख रहे हैं ताकि हम आगे उसके बारे में पढ़ सकें। ठीक है, तो यही हमारी टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, जिसमें से सबसे पहली है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रिजर्व ऑन सीड्स, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड्स। यानी कि जैसे कोई भी हमारा प्लांट है उसके बारे में हम फर्दर आगे स्टडीज़ के लिए उसे प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे और उस पर उसे एक पेस्ट कर देंगे और उस पेपर पे मतलब केमिकल वगैरह छिड़क देंगे और उस पे नीचे उसके डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन को मेंशन कर देंगे, उसका इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल नेम लिखेंगे और उसका फैमिली और कलेक्टर्स का नेम लिखेंगे। यही क्या है? हर्बेरियम है। नेक्स्ट आता है बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स यानी कि ये स्पेशल गार्डन्स होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पे जा कर के हम उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी फेमस बोटेनिकल गार्डन है क्यू, जो कि इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो काफ़ी फेमस है वो है हावड़ा में, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा लखनऊ में। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम के बारे में तो काफ़ी अच्छे से सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे टूर वगैरह के लिए भी जाते रहते हैं स्कूल से। तो म्यूज़ियम क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी रेफरेंस। यानी कि प्लांट्स के और एनिमल्स के स्पेसिमेन को यहाँ पे कलेक्ट करके रखा जाता है स्टडी के लिए। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। ये जो स्पेसिमेंस होते हैं ये स्पेशल जार्स के अंदर स्टोर कर रखे किए जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस में आल्सो बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेंस। इनको हम ड्राई करके भी स्टोर कर सकते हैं। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें बॉक्सेस में प्रिजर्व किया जाता है कलेक्ट करने के बाद, फिर उन्हें किलिंग करने के बाद और उनकी पिनिंग करने के बाद। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। जो बड़े मैमल्स होते हैं उन्हें इस तरह से कुछ किया जाता है जिससे उनके पहले अंदर स्टफिंग की जाती है, फिर उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन एंड एनिमल्स टू। जो म्यूजियम्स होते हैं उसमें एनिमल्स के स्केलेटन्स का भी कलेक्शन होता है। जूलॉजिकल पार्क्स, places where wild animals are kept in a protected environment under human care and which enables us to learn about their food habits and behavior. जूलॉजिकल पार्क्स जो कॉमनली बच्चे जिन्हें जू बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है ह्यूमन केयर के अंडर
और वहाँ पे उन्हें एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उन्हें ऐसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट की यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। इसमें क्या होता है, इसमें दो दो पेयर बनाए हुए होते हैं हर एक वो सिमिलैरिटीज से भी डिससिमिलैरिटीज से भी। कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कैपलेट्स। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में कि मतलब जैसे ये होगा ये नहीं होगा, इस तरह की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में इन पेयर बनाए हुए होते हैं और उन पेयर्स को हम बोलते हैं कपलेट्स। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। ये दो अपोजिट ऑप्शंस के बीच में चॉइस, मतलब जैसे अब दो अपोजिट ऑप्शंस हैं तो हम एक को ही चूज़ कर सकते हैं ना, उस तरह से। इस स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ लीड, और हर एक स्टेटमेंट को की में हम लीड कहते हैं। कीज और जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये की जो है वो एनालिटिकल होती है नेचर में। फ्लोरा, फ्लोरा क्या है, कंटेन्स द एक्चुअल हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया, यानी एक एरिया के अंदर जो हैबिटेट है और डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स का वो किस तरह से है, ये फ्लोरा में हम पढ़ते हैं। मैनुअल्स यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया। एक एरिया में जो स्पीशीज़ है, मतलब चाहे वो कोई भी स्पीशीज़ हो, चाहे प्लांट स्पीशीज़ हो चाहे एनिमल स्पीशीज़ हो, उसके बारे में एक पर्टिकुलर एरिया की जो प्लांट स्पीशीज़ है या एनिमल स्पीशीज़ है उसके बारे में मैनुअल्स में पढ़ते हैं। और मोनोग्राफ्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। जो मोनोग्राफ्स है वो एक किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। एक टैक्सॉन यानी कि टैक्सॉन के बारे में तो हमने पढ़ा ही था ऊपर। हर एक जो कैटेगरी है हमारी जो वो एक रैंक रखती है जिसे हम टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।